Delegate. Delegate means representative. Emaciated यानी weakened, कमजोर कर देना. Resolute, determined, दृढ़ निश्चय वाला. Complied, acted in accordance with request or command. Conferred, consulted, made a decision या bestowed. तीनों मीनिंग्स इसके होते हैं. यानी कि किसी से कंसल्ट करना या कोई डिसीजन लेना या bestowed यानी to shower upon. Grievance, cause for complaint, dissatisfaction, असंतोष या शिकायत का कारण. Vehement, very emotional और strong, forceful यानी कि दृढ़ता से कहना या भावुकता से बोलना. Defender यानी protector. Filthy, very dirty. Trench, a long, narrow and usually deep ditch. लंबा और कम चौड़ा गड्ढा. State whether the following statements are true or false. Number 1, Rajkumar Shukla was a landlord. False. Gandhiji went to Champaran on his own to begin the civil disobedience movement. False. All the peasants of Champaran agreed to sign a contract with the British landlords for compensation. False. Gandhiji did not want to meet Professor Malkani and Dr. Rajendra Prasad. False. Gandhiji was a lawyer, so he did not scold the lawyers for charging heavy fee from poor peasants. False. Gandhiji helped the poor peasants in their upliftment by making them aware about education, hygiene, fundamental rights, and self-reliance. True. Champaran was Gandhiji's Waterloo. True. Answer the following questions in about 20 to 30 words. Question number 1. Why did Rajkumar Shukla approach Gandhiji? Rajkumar Shukla was a sharecropper, and in Champaran, Bihar, all the peasants who were sharecroppers were dissatisfied and were in a very poor condition as they were being exploited by the landlords due to the indigo plantation arrangement, sharecropping arrangement. So he wanted Gandhiji's help to solve the problem of the peasants. What were the terms of contract between British landlords and peasants? So the terms of contract were at least all tenants have to plant at least 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जितनी भी जो किराएदार हैं, टेनेंट्स हैं, तो लैंडलॉर्ड्स ने उनको कंपेल किया था कि अपनी जो भी जमीन है उनके पास उसका 3/20 पार्ट या 15% लैंड एरिया में इंडिगो प्लांटेशन करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा प्रोडक्शन एज अ रेंट उनको दे देना पड़ेगा. Why did Gandhiji not agree to proceed to Champaran with Rajkumar Shukla immediately? Because at that time, Gandhiji thought it was a meager problem, यानी छोटी प्रॉब्लम है, और उनको लगा था कि थोड़े बहुत दिनों में वो सुलझ जाएगी. तो he wanted to finish all the important assignments जो पहले उनको जरूरी काम लग रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि वो सब कर ले, उसके बाद वो चंपारण जाएंगे, क्योंकि वहाँ
की प्रॉब्लम उनको इतनी बड़ी नजर नहीं आई थी, बिकॉज ही वॉज अनअवेयर ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो, और उनको ये पता भी नहीं था कि उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. What happened? Question number 4. What happened when Gandhiji and Rajkumar Shukla wanted to meet Rajendra Prasad? तो जब ये दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन, और वहां के जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि वो बहुत बार आया था राजेंद्र प्रसाद से हेल्प मांगने, एंड दे न्यू हिम एज अ पुअर पीजेंट. तो गांधी जी को भी उन्होंने उसी का साथी समझ लिया. They took him to be the another peasant, and they were made to sit outside on the grounds. और गांधी जी को उन्होंने कुएं से पानी लेने के लिए भी परमिशन नहीं दी. They thought him to be an untouchable. Question number 5. Why did Gandhiji plan to go to Muzaffarpur? Gandhiji planned to go to Muzaffarpur because he wanted to collect the proper information about the प्रॉब्लम. जो भी उनकी समस्या थी उसकी पूरी जानकारी वो हासिल करना चाहते थे. दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. और सेकेंडली मुजफ्फरपुर में उनके कुछ फ्रेंड्स थे, कृपलानी और दिस मलकानी, प्रोफेसर मलकानी एंड प्रोफेसर कृपलानी. तो उनसे भी वो एक बार कंसल्ट करना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 6. What was the effect of synthetic indigo on natural indigo crop? सिंथेटिक इंडिगो जब जर्मनी में डेवलप कर ली गई तो उनको नेचुरल इंडिगो क्रॉप की जरूरत नहीं रही थी, बिकॉज सिंथेटिक इंडिगो से काम चल रहा था. So now they did not require the natural indigo crop. और उसकी वजह से जब इन लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला तो उन्होंने जो 15% अरेंजमेंट था उसको खत्म करने के लिए पीजेंट से कंपनसेशन मांग लिया ताकि उनको डबल प्रॉफिट हो सके. Question number 7. How did British landlords compel poor peasants? British landlords compelled poor peasants to grow indigo on at least 15% of their holdings and surrender the entire indigo harvest as rent. Then they asked them to pay the compensation for being released from the 15% arrangement. तो पहले उन्होंने कंपेल किया कि जो 15% लैंड होल्डिंग है उस पर इंडिगो प्लांटेशन करनी है और पूरा का पूरा इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट उनको देना है. और जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप होने की खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इस एग्रीमेंट 15% अरेंजमेंट या एग्रीमेंट जो था उससे रिलीज करने के लिए कंपनसेशन मांग लिया. Question number 8. Why did Gandhiji scold the lawyers? Gandhiji scolded the lawyers to charge high fee from the poor peasants. जो गरीब किसानों से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे उनके केसेस को कोर्ट में पेश करने के लिए, उसके लिए गांधी जी ने उनको डांटा. Question number 9. How did the Champaran episode prove to be a turning point in the political career of Gandhiji? Champaran episode proved to be a turning point in the political career of Gandhiji because Gandhiji had proved himself in South Africa, जहां अपार्थिक की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की थी और सबसे पहली बार वहां सत्याग्रह किया था. बट he came to India in 1915 और तब तक उनको यहाँ की जो पोजीशन थी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था. चंपारण में जब वो गए और वहां उन्होंने there also he was afraid
उनको सम्मान दे दिया गया था कोर्ट का, और कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया था, तो ही वॉज अफ्रेड दिया जाएगा। बट और वहां के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, फिर भी हजारों की संख्या में जब वहां किसान लोग इकट्ठे हो गए, और उन किसानों के डर से, उस भीड़ के डर से कोर्ट को अपनी ट्रायल कैंसिल करनी पड़ी। गवर्नमेंट हैड टू सरेंडर, गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा, और उन्होंने देखा कि किसानों के मन से डर निकल गया है, जो लैंडलॉर्ड्स का और ब्रिटिशर्स का और गवर्नमेंट का डर था, वो सब उनके दिमाग से निकल गया है। और उन्होंने, गांधी जी ने भी ये समझ लिया कि अगर इंडियंस यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं, तो इस एकता के सामने ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं चलेगी, और वो लोग फाइनली हार जाएंगे। मतलब जरूरत, यानी कहाँ से इस जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी शुरुआत कहाँ से करनी थी, ये गांधी जी को समझ में आ गया। गांधी जी को अपनी अहमियत और एकता की ताकत समझ में आ गई, और किस तरह से इंडियंस को एक किया जा सकता है ये भी उनको समझ में आ गया। तो और पहली बार वहां पर सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी, क्योंकि गांधी जी ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना था, और फिर भी उनको कोई सजा नहीं हुई, कोई पनिशमेंट नहीं हुई, केस को ड्रॉप कर दिया गया। सो दिस वाज द ट्रायम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इन द मॉडर्न इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहीं से शुरुआत हुई थी। आगे फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया, एंड फाइनली द फ्रीडम मूवमेंट गेन मोमेंटम, यानी कि वो और तेज हो गया। तो एक स्ट्रैटेजी बन गई कि कैसे इस फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाना है, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स को किस तरह से हराना है। तो ये सारी जो भूमिका बनी, जो स्टार्टिंग हुई, वो चंपारण में हुई थी। दैट इज व्हाई वी कैन से that Champaran episode proved to be a turning point in the political career of Gandhiji. And Gandhiji became popular and famous as he solved the big problem without being violent. किसी भी वायलेंस का उन्होंने सहारा नहीं लिया, किसी भी तरह का कोई एजिटेशन नहीं हुआ, और उनकी जीत हुई थी। किसानों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, उनको उनका पैसा वापस मिल गया था, उनके मन से जो डर था वो निकल गया था। So this was a big victory on behalf of Gandhiji, and that is why it was a turning point. Question number 10. ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण एपिसोड proved to be a turning point. This is very important. और ये चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। अगर कोई भी डाउट है तो इमीडिएटली आप लोगों को पूछ लेना चाहिए। Yes, question number 10. What did Gandhiji do for social upliftment of the poor families of peasants? So, for their social upliftment, Gandhiji appealed to teachers, महादेव देसाई और नरहरि पारिक और उनकी वाइफ्स, उन्होंने खुद इस काम के लिए वो सहमत हुए। बहुत सारे और लोगों को बुलाया गया। देवदास जो गांधी के यंगेस्ट सन थे, उनको भी आश्रम से बुलाया गया, और मिसेस गांधी यानी मिसेस कस्तूरबा गांधी, उनको बुलाया गया ताकि वो आश्रम रूल्स और पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के लिए जो जरूरी है वो सब इन लोगों को समझा सके, क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस उनको बताई जा सके। 6 schools, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 villages। उसके अलावा हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया ताकि वो खुशी से अपनी सर्विसेज दे सकें फॉर 6 months।
और medicines were provided to them who were suffering from many diseases at that time. साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए, हाइजीनिक ढंग से रहने के लिए उनको समझाया गया. एंड ऑल दिस वाज डन, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और सोशल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के बारे में उनको अवेयर किया गया. So, Gandhiji helped the poor peasants in their upliftment by making them aware about education, hygiene, fundamental rights, and self-reliance as well. Is that clear? Then answer in 60 to 80 words each. Question number 1. How did Gandhiji help the peasants in Champaran? तो पूरा आपको इसका आंसर डिटेल में लिखना होगा. डिटेल आंसर बोर्ड में 7 मार्क्स का आता है, तो डिटेल में ही उसका आंसर देना होगा. तो सबसे पहले गांधी जी वहां गए, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सारी जानकारी हासिल की, लॉयर्स को बुलाया, लॉयर्स से बात की और एक प्लानिंग की. उसके बाद चंपारण और जो उस आसपास के इलाके के जितने भी पीजेंट्स थे उनको इकट्ठा किया, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी, उनके पॉइंट्स नोट डाउन किए, एविडेंसेस इकट्ठे किए, यानी कि सबूत इकट्ठे किए. उसके बाद वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उससे मिले, वाइसराय को पूरी रिपोर्ट भेजी, सारी जानकारी की. एंड फाइनली एक ऑफिशियल कमीशन सेटअप हुआ इंक्वायरी का, और सारे सबूत जो थे वो पीजेंट्स के फेवर में थे और प्लांटर्स के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे. तो उनको तैयार होना पड़ा that they will have to pay the refund money back. They will have to refund the money. पैसा उनको वापस देना पड़ेगा. एंड इधर उन्होंने पीजेंट्स को अवेयर किया कि उनके अपने भी अधिकार हैं एंड दे विल हैव टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स. अपना खुद के दम पर, खुद के भरोसे पर, सेल्फ रिलायंस के भरोसे पर उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी. उनके अंदर करेज पैदा किया, उनके मन से डर निकाला एंड फाइनली देयर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. उनको उनका पैसा भी वापस मिल गया और फाइनली उनकी जमीनें भी उनको वापस मिल गई और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया. क्वेश्चन नंबर 2. Explain in your own words how Rajkumar Shukla convinced Gandhi ji to proceed to Champaran. तो राजकुमार शुक्ला जो है वो सबसे पहले लखनऊ सेशन जो था कांग्रेस का, वहां पर वो गया. वहां पर बहुत सारे डेलीगेट्स और विजिटर्स आए हुए थे. वहां वो अपनी कंप्लेन लेकर के गया था, जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए. वहां किसी ने उसको बोला कि गांधी से कंसल्ट किया जाए, स्पीक टू गांधी. और उसके बाद से वो गांधी जी के पीछे पड़ गया. गांधी जी इमीडिएटली तैयार नहीं हुए थे चंपारण जाने के लिए. तो जहां जहां भी वो गए, शुक्ला उनके साथ गया, उनके साथ ही आश्रम वापस आया और गांधी के साथ ही बना रहा राजकुमार शुक्ला कि वो उनको लेकर के ही जाएगा वहां. एंड फाइनली गांधी को एक डेट फिक्स करनी पड़ी कि कलकत्ता में जब मैं आऊंगा कौन सा डेट, तो वहां करके मुझसे कॉन्टैक्ट करो और वहां से हम लोग साथ में चलेंगे. तो कई महीने बीत गए, बट वहां भी कलकत्ता में भी राजकुमार शुक्ला वॉज वेटिंग फॉर गांधी एंड फाइनली गांधी को तैयार होना ही पड़ा उसके साथ जाने के लिए.
Why did Gandhi ji decide to consult Professor Malkani and Dr. Rajendra Prasad? Professor Malkani or Rajendra Prasad, Rajendra Prasad was a prominent lawyer, and Professor Malkani के घर में वो 2 दिन रुके थे. Who was a teacher in the government school. तो वहां पर वो इन दोनों से सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे, क्योंकि देवर करेजियस मैन. इनमें वो डेयरिंग थी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से के अगेंस्ट जा सकते थे. तो दैट इज वाई गांधी जी इनसे वो पूरी जानकारी हासिल करना चाहते थे और इनका सपोर्ट भी, ताकि जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 4. What were the old terms and conditions of the contract between the British landlord and the peasants? तो ये वही है जो ऊपर हमने उस क्वेश्चन में आंसर दिया था. ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस यही थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स में कि जो 15% शेयर लैंड होल्डिंग है उस पर इंडिगो प्लांटेशन करनी होगी और पूरा इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा. What was the impact of the Champaran episode on the peasants and the British government? तो peasants पर, यानी कि जो किसान थे, उन पर चंपारण एपिसोड का बहुत बड़ा फर्क पड़ा. उनको लगा कि उनके भी अपने अधिकार हैं और उनके लिए भी कोई लड़ने वाला है, उनके को सपोर्ट करने वाला कोई है. तो उनके मन से जो डर था लैंडलॉर्ड्स के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति, वो सारा डर उनका निकल गया. और जब वो हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए तो उनको अपनी एकता की शक्ति का भी अंदाजा हो गया. एंड फाइनली जब उनकी जीत हुई, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को उनके सामने झुकना पड़ा, दे वर रेडी टू पे देयर मनी बैक. एंड शेयर क्रॉपिंग से भी उनको छुटकारा मिल गया. तो उन्हें अपनी जो ताकत थी उसका एहसास हो गया. They became aware of their fundamental rights and they became self-reliant. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि अगर ये इंडियंस एक हो जाएंगे तो हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे कि गांधी जी को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया था, पर वहां जितनी संख्या में पीजेंट्स और लोग जमा थे, तो उन लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था. उसके लिए भी उनको गांधी जी की ही हेल्प लेनी पड़ी, ताकि उस भीड़ को शांत रखा जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके. और उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर इंडियंस एक हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं अपने राइट्स के प्रति, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई अस्तित्व वहां नहीं बचेगा. एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अनेबल टू फेस दोज इंडियंस. Is that clear? So you have to do B and C in your notebooks. उसके अलावा जो स्पीच एक्टिविटी है उसमें एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 दोनों आपको करनी है. एक्टिविटी 3 में है क्वेश्चन नंबर 1, ड्राफ्ट अ स्पीच ऑन नॉन वायलेंस एज अ पोटेंट वेपन फॉर वर्ल्ड पीस. तो नॉन वायलेंस एक प्रमुख हथियार है, इंपॉर्टेंट वेपन है अगर दुनिया में हम शांति चाहते हैं. तो नॉन वायलेंस में ये आप इसका एग्जाम्पल देंगे चंपारण एपिसोड का, जहां गांधी जी ने बिल्कुल भी वायलेंट हुए बिना, वायलेंस का सहारा लिए बिना, कोई एजिटेशन, कोई धरना, आंदोलन, प्रदर्शन किए बिना किसानों को उनका हक दिलाया, उनको उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया. और अफ्रीका में भी पाक की जो पॉलिसी थी, रंग भेद नीति, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने सत्याग्रह किया था. यानी बिना हथियार उठाए, बिना वायलेंस का सहारा लिए उन्होंने जीत हासिल की थी. सो a short speech you have to write on this topic.
सेकंड है prepare a speech for your prayer assembly on the role of the revolutionary leaders of the Indian freedom struggle. रिवॉल्यूशनरी लीडर्स का क्या रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसमें आप 2-4 एग्जांपल्स देंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि भगत सिंह है, गांधी है, एंड चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, तो किसी का भी आप एग्जांपल लेकर के इसमें लिख सकते हैं। देन एक्टिविटी 4 composition, write a letter to the editor of the Indian Express about the exploitation of indigo farmers at the hands of the English landlords on the basis of this lesson. इस लेसन के अकॉर्डिंग आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर, और उसमें बताना है एज अ शेयर क्रॉपर यू विल हैव टू राइट, एक फार्मर की तरह से ही आपको लिखना पड़ेगा दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑन द हैंड्स ऑफ बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और उसमें जो टर्म वो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में बताना पड़ेगा। और उसके अलावा जब उनको इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप होने का पता चल गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया उसके बारे में, that they wanted compensation from the peasants to let them be free of this arrangement. So a short letter you have to write. तो अब इसमें आपको करना है बी, सी, एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4. Is that clear? Now any problem? Anything you want to ask in this lesson, because this lesson is very important for your board exams. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो यू जस्ट आस्क मी. And in the next class, we'll start lesson 8, Journey to the End of the Earth. Is that clear? ये जो स्पीच एक्टिविटी और कंपोजिशन है, ये आप लोगों को जरूर से करना है, बिकॉज इसके साथ साथ आपका राइटिंग सेक्शन भी कवर अप होता जाएगा. एंड लेट अस सी कितना % सिलेबस कम होता है. अभी 30% का तो शायद हो गया है, तो इसीलिए एक बार पूरा बुक्स का तो हम कर लेते हैं, उसके बाद जितना सिलेबस कम करेंगे और जो बचेगा उसको रिवाइज करने का हमारे पास इनफ टाइम होगा. दैट्स व्हाई जस्ट लेट अस फिनिश द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस. इसमें 4 लेसन्स बचे हैं और 2-3 पोएम्स हैं. Is it clear?